Non-verbal is not equal to not intelligent. True. They are not understanding what you're talking. You're absolutely in the wrong. So a lot of the parents sometimes, of course, they are also worried. So they would discuss about the kid in front of the kid, thinking इसको क्या समझ में आ रहा होगा. I never stopped talking to him. He never responded. That's perfectly fine. I never stopped talking to him. I found a school, 107 school में से एक school मैंने किया था और So if you've seen an autistic individual, you've only met one person with autism. That is what they say, right? So for every child or every individual, we have a separate plan. एक समर कैंप होने वाला था जो कोचेज वहाँ पे आने वाले थे. मैं वो कोच के पास गई. आई पेड हिम डबल द अमाउंट. वी आर नॉट हियर टू लर्न स्विमिंग. उनको सिर्फ पानी में खेलने दो. तो उसने शिवम का भी हाथ पकड़ा और ऐसे खींच के बाहर निकाल के ऐसे ऐसे लिटरली ही थ्रू. इसको भी ले जाओ. जिंदगी में नहीं सीख सकते आपके बच्चे स्विमिंग. मैं इसी पूल में सिखाऊंगी. देखना तुम. 6 दिन में मेरे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे विदाउट फ्लोट. 7वें दिन मैं बैठी थी ऐसे. मेरे को 3 बाउट्स ऑफ डिप्रेशन है. वेरी वेरी सीरियस. Coming over to Doctor, we would definitely love to hear more. Usse pehle, I would love to know from you, Doctor. So we did see that non-verbal as well can really communicate and find their way. Yeah. But there are a lot of myths that are attached to non-verbal in the autism world. So I would love to know from you. Yeah. Like ma'am said, non-verbal is not equal to not intelligent. True. So if you think that they are not understanding what you're talking, you're absolutely in the wrong. So a lot of the parents sometimes, of course, they are also worried. So they would discuss about the kid in front of the kid, thinking इसको क्या समझ में आ रहा होगा. But please be extremely careful about it, because the child understands, or the individual understands what you are talking. The second myth that I think people have is that they do not have emotions. They have immense amount of emotions. They are always looking for a friend. So they thrive on relationships, they thrive on friendships. Sometimes when a child doesn't reply back, a lot of the parents are like, ma'am, मैं office से भी आता हूँ, the child doesn't even give me a hug. ये तो मेरे को प्यार ही नहीं करता, इसको कुछ इमोशन नहीं फील होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. They feel emotions and they feel it a lot. They're not able to express it. Just because they're not expressing it the way you are doing, it does not mean that they're not intelligent. And more often than not, they are more intelligent than all of us sitting here. Yeah, ma'am has already... Yeah, ma'am has already given us so many examples. That what do I say more about it? Ma'am has already validated. No, Yeah. he is more intelligent than the... I can only give you a textbook version, but I'm seeing this happening practically and makes me so happy. to add you on that ना, मतलब मैं जब सत्यन से बात करती थी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मेरे घर वाली क्या बोलती रहती है, वो कुछ जवाब दे रहा है क्या, एंड आई एम लाइक, आपने कंप्यूटर देखा ना, हार्ड डिस्क हो रहा है, उसमें मेमोरी स्टोर हो रही है, निकलेगा कभी तो. कुकिंग भी उन्होंने देखा होगा ना कभी तो. I never stopped talking to him. He never responded. That's perfectly fine. I never stopped talking to him. So मतलब लोगों का क्या क्या जवाब दे रहेगा तेको ऐसे करके. पर मैं बोल रही हूँ. We tell parents कि आप क्या करो, the child who's non-verbal, the best way to make them talk is जब आप निल्हा रहे हो, अच्छा this is the towel color today, what do you want to wear? You want to wear a skirt? What skirt do you want to wear? Oh, mama's applying soap on your head now, are you liking it? Keep talking. It may look like nonsense from an outside. This is exactly what we tell them, and a lot of parents do it. They keep talking to the child. अब देखो बहुत पहले वाले स्पीच थेरेपिस्ट ने कैसे बोलते थे, आप 1 स्टेप कमांड दो, आप 2. तो स्पीच थेरेपिस्ट ट्राई टू करेक्ट, नहीं आप इतना उसको समझे एक साथ. मुझे लगता है उसको सब समझ रहा है. और फिर वो मेरे को रिएक्शन भी वैसे मिल जाता है करके. तो और मेरे को समझ में आ गया. अभी वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे अभी नहीं लग रहा तो ये जो टेक्निकलिटी है वो हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ दे आर रॉन्ग, उनकी जो पढ़ाई में रहेगा, पर मुझे ऐसा लगता था मैं नॉर्मल जैसे मैं बातें कर रही हूँ, मैं वही बातें कर रही हूँ. A mother knows best. चल अभी दिमाग में खराब इधर आता इधर खड़े रहना चुपचाप से. दिमाग खराब हो गया, पका के रख दिया, ये कर दिया. I used to जैसे चिड़चिड़. The way, yeah. और ऐसे मैं बड़बड़ नहीं कर रही हूँ. You better listen. मतलब I'm just looking at it. You better listen.
ऐसे नहीं कि मैं बड़बड़ कर रही हूँ वो चले जा रहे, औरतें रहती है ना अपना बड़बड़ कर रही है, खड़े रह इधर, खड़े ये लाइन पे खड़े रह तू उधर, सुन तू उधर पे खड़े रह के ऐसे करके. Wow. So amazing. Yeah, that's what I said. A mother knows better. As she said, Yes. if I'm talking, he's responding. So I know he's able to grasp that. Never stop talking. True. If he's not talking, आपको उसके हिस्से का भी बात करना है. करेक्ट, ये बहुत अच्छा बोला आपने. आपको उसके हिस्से का उसके भी हिस्से का भी बात आप मैं शिवम की बात बता रही हूँ. मेरे को स्पीच थेरेपिस्ट ने बताया था कि हम जब पूछेंगे आपका नाम क्या है तो अकेले में वो बोलेगा आपका नाम क्या है, तो आपको ही जवाब देना आपका नाम क्या है, शिवम. ताकि ही लर्न्स Then he learn- आपको आपका नाम क्या है स्लो बोलना, शिवम बोलना, आपका नाम क्या है शिवम, तो वो शिवम रिपीट करेगा. या पीछे किसी को खड़ा करो वो बोले शिवम, तो हमको उसके हिस्से का भी बात करना है ना, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं. यस. Very important and a good lesson to learn. या एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग बस में गए तो उसको विंडो सीट नहीं मिली, तो हम साइड में बैठ गए, तो बाजू में एक जो अंकल थे वो ऐसे थोड़े सीट खड़ूस जैसे टाइप के दिख रहे थे, तो वो बैठे थे. तो सत्यम थोड़ी देर बैठा पे देन ही इज स्टैंडिंग, सो ही इज लाइक ही इज इरिटेटेड, ऐसे लुक दे रहा है. तो सत्यम बार ऐसे उनको बोल रहा है इधर बैठा, उनको इधर, तो ही वाज लाइक ही इज गिविंग हिम टफ, यू नो कि नहीं तो नॉर्मल कैसे लोग बच्चा करते हैं तो बोल आ जाते कर, ही इज गिविंग टफ टाइम बट ही इज नॉट बजिंग, ही इज प्लीडिंग and he's looking at him. He's like, देखो आप ऐसे करके प्लीड तो नहीं कर सकते. He's looking at him. His eyes are seeing कि like ऐसे करके कि मैं इधर देख ऐसे करके सदम चुपचाप बैठो, वो अंकल की सीट है ऐसे करके. तो फिर हम बोले देखो आप अपने बेटे को समझाओ, तो मैं समझा तो रही हूँ मैं ऐसे करके. कंडक्टर आया बोला अंकल आप उठो, उस सीनियर सिटीजन की सीट पे बैठो. He got his window seat. Because conductor knew we used to travel ऐसे करके and he's requesting and all. नहीं तो नॉर्मल कोई भी ऐसे लोग दे देते थे. कि वो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत है. हाँ, everybody has their So role. I was like, वो बेचारे हाँ, झगड़ के और मैं मन में बोलती हूँ कर ले भाई, तू डील कर ले, तू कर सकता है डील कर ले, क्योंकि मैं नहीं उसको उठा नहीं पा रही हूँ ऐसे करके, मैं नहीं उठा पाऊंगी. बट दैट्स व्हेयर नो एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम तो देखते हैं कि सीनियर सिटीजन है, हम उठ जाते हैं, तो आप भी ये चीज देख सकते हो ना कि शायद इसको जरूरत है बैठने की, तो आप बैठने दे हाँ, सकते एक बात और रिकॉर्ड पे जानी चाहिए. आई फील यू नो सबको लगता है कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं तो उनमें एम्पैथी ज्यादा है, उनमें अवेयरनेस ज्यादा है. हाँ. बट आई हैव सीन मेड्स, ड्राइवर्स, पियोन्स having that empathy Yes. without knowing the fact. yes agreed. True. 100%. Without knowing the fact. और if you go to higher, you know, आप बहुत ऐसे बड़े स्कूल में जाओ तो वहाँ पे अवेयरनेस है, बट स्टिल दे डोंट Understanding वांट नहीं देयर है. चिल्ड्रन टू बी, वो इंक्लूसिवनेस में नहीं, नहीं, हाँ. वो सुनेंगे भाषण, ताली मारेंगे, पर अपने बच्चों को उनके साथ नहीं. वो ऑटिज्म डे पे एक पोस्ट आएगा इंस्टाग्राम पे, Correct. ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे में And 4 they're बातें aware, करेंगे. they're well aware. एंड सेंसरी फ्रेंडली आप बोलते हो, They're you well say that हाँ, but then your children are running around the class, you're keeping an autistic kid here who has such sensory issues. I've seen so many kids. And inclusive school, ma'am, we are sending to an inclusive school. What's happening in the school? The teacher is yelling, duster ऐसे टेबल पे बजा रही है, बच्चे भाग रहे हैं. ये कैसे सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? अब मेरे को ये कुछ भी नहीं आया ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आई फाउंड अ स्कूल, 107 स्कूल में से एक स्कूल मैंने किया था, और दैट वाज नॉट वेरी हाई फाई स्कूल, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आया. बट मैं सुनती हूँ मतलब इतने, मतलब दे आर पेइंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, दे आर पेइंग फॉर द शैडो टीचर. हमारे ज़माने में तो शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, यू नो, ऐसे करके होगा तो भी शायद बड़े बड़े स्कूलों में होगा, यू नो, वो उनको तो पता नहीं था ऐसे कुछ भी. तो मतलब मुझे तो, मैं अभी देखती हूँ ना, सुनती हूँ थेरेपीज के रेट या शैडो, मैं बोलती हूँ शिवम तो फ्री में पड़ गया भाई. मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि 1st से लेके 10th तक का तुम्हें को ट्यूशन के पैसे तो दे दे, आई विल बी लखपति, यू नो, जस्ट अमाउंट ऑफ, यू नो, इनटू 12. 10th में 6-7 लाख रुपए लग रहे हैं. मैंने तो 10th पे भी पढ़ाया हुआ है. मेरे को याद है, आई फाइंड इट वेरी टफ मैथ्स एंड साइंस. तो गाइड लाके पहले मैं पढ़ती थी, फिर मैंने लास्ट आज भी मिलती है. अभी भी है. तो अभी भी है. फिर मैंने क्या किया, लास्ट में 2-3 महीने में शिवम को बोला ये छोड़ दे, ये सब थोड़ी पढ़ना है हमको,
बिकॉज दैट जुगाड़ आई डिड ऑन व्हेन आई वी यूज्ड टू डू दैट। मतलब सब नहीं पढ़ना है हमको, वो तो आते हैं ना ऑप्शन आते हैं ना, वो आएगा तो छोड़ देना उसको, ठीक है, एक तो छोड़ दे, क्योंकि मुझे ही नहीं आ रहा है, मैं तेरे को कैसे सिखा रही हूँ, बिकॉज इट इज टफ फॉर मी। मैं कितने साल पहले पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए टफ हो रहा है, तो ऐसे करके ये छोड़ दे, मेरे क्या सब आना चाहिए, मतलब सब क्यों आना चाहिए, मैंने खुद नहीं सब पढ़े, मैंने खुद नहीं सब पढ़े। और क्या नहीं काम आ आता रहा है, क्या ही काम आ रहा है है? आज की लाइफ में? कुछ काम नहीं आ रहा है वो। तो और I फिर think you have the power to change the education system. नहीं, वी हैड बीन, हम लोग फॉरवर्ड हम हाँ। गए थे, हमने कंसेशन के लिए जब गए थे, हमने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, वी गॉट मेनी थिंग्स, यू नो। अभी तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कंसेशन है, Okay. अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपको कंसेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम। To be very frank, the education system for neurodiverse is any day much better. And this should be adapted for neurotypicals. Is it much better though? हमको एक बेसिक मिला था कि जब असेसमेंट मिला था, शिवम को जितने पॉसिबल कंसेशन थे सब मिला था, हमें सब मिला था कि हमें स्क्राइबर मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, हमें ये मिलेगा। शिवम सब देख के खुश हो गया, बोले मम्मी राइटर भी रख लेते, हाथ दुखते हैं ना लिख लिख के, हाँ राइटर। I said, शिवम ये नहीं हो पाएगा, नहीं लिखा हुआ है, हमें अलाउड है। आई सेड हम अलाउ नहीं करेंगे, मम्मी नहीं करेंगे ना। पहली बात तो हमें स्क्राइबर ढूंढना पड़ेगा, है ना, फिर आप कुछ बोलेंगे वो कुछ और लिखेगा, आप ही लिखो। नहीं मम्मी अलाउड है, तो जो अलाउड है जरूरी नहीं है ना कि अभी देखो मेरे को लास्ट वीक मेरे को एक पेरेंट ने फोन किया, शी वांटेड टू कंप्लेन, शी सेड कि डू हैव एनी कांटेक्ट, मुझे कंप्लेन करना है कि मेरे बच्चे को स्पेशल स्कूल में 5 घंटे नहीं रख रहे हैं। सो आई सेड देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द चाइल्ड। मैं आपको मेरे बच्चे की बात बताती हूँ, मेरे बच्चे को 3 साल तक सिर्फ 2 घंटे रखते थे, बिकॉज ही कुड नॉट सिट, ही वाज हार्मिंग अदर किड। आप सोचो, आपका बच्चा शांत बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा अगर उसको काट जाए, मार जाए, आप एज अ पेरेंट क्या करोगे? आपको लग रहा है आपके बच्चे का राइट है, उससे दूसरे बच्चे का राइट तो खत्म नहीं हो जाता ना। Wow, such an understanding. दूसरे Yes. बच्चे का तो राइट खत्म नहीं हो जाता ना, फॉर हिज सेफ्टी। मैंने बोला देखो, आपको क्या चाहिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप उनको ये बोलो कि 3 घंटे का आप उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठाओ, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। आप सीधे 6 घंटा नहीं, वो तो क्लेम करते हैं कि वो तो पूरे टाइम होना चाहिए। मैंने बोला अच्छा, मतलब आज की तारीख में इंक्लूसिव कंपलसरी वो आपको एजुकेशन, तो मैं सत्यम को आज की तारीख में नॉर्मल स्कूल में डाल दूं, भले ही वो स्कूल में हंगामा मचाए, कुछ ना सीखे, मतलब उससे वो लड़के का क्या फायदा, बाकी लोग का नुकसान है वो छोड़ो, मेरे लड़के का फायदा क्या? आई डोंट माइंड पीपल गेटिंग अफेक्टेड, बट इज देयर एनी माई चाइल्ड्स बेनिफिट इन दैट? आई नेवर ट्राइड सत्यम इन एनी नॉर्मल स्कूल, बिकॉज मेरे को मालूम था वो स्पेशल, वो बैठ ही नहीं पा रहा, तो क्या सीखेगा जाके? And parents are not और aware also. फॉरगेट अबाउट सत्यम, मैंने शिवम के लिए भी क्या बोला था, आप 6 महीने के लिए ट्राई करो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ही विल सिट। This is needed. Otherwise, parents are like, नहीं, हमने पैसे Yeah, yeah. तो बिठाओ और कराओ। मैंने जैसे This is बोला what- ना आपको, वो पेरेंट कैसे आर्ग्यू कर रही थी, 3 महीने से पैसे भर रहे हैं हम, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपके बच्चे को इंजीनियर की डिग्री देके स्टैम्प मार के वो आपको बाहर भेजेगा? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो एक्सपेक्टेशन भी आपकी रियल रखो ना, It should be real. So true. आप एक्सपेक्टेशन भी रियल रखो। तो बहुत टाइम तक वो डिनायल का फेज ओनली It's डजंट still, गेट yeah. ओवर। और ऐसे है कि आप एफर्ट अपना 100% डाल सकते हो, रिजल्ट के लिए आपके पास, अब वो कृष्ण का है ना, कर्म करो फल की चिंता आपके कब कर ही नहीं सकते हो। मैंने दोनों पे एफर्ट सेम डाला है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने शिवम को एक्स्ट्रा अटेंशन दी है। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने सत्यम को एक्स्ट्रा अटेंशन दी है, बिकॉज शिवम जब स्कूल में था तो उसको थेरेपी लेके जा रही हूँ मैं, उसको तो पर फिर भी उसमें उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई ना। एफर्ट हम दे सकते हैं, आप अपना एफर्ट दो 100%। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि शिवम सत्यम बन जाए, सत्यम शिवम बन जाए। आप एफर्ट दे सकते हो, डिपेंड वो बच्चा कहाँ पे जाएगा, वो उसका फेट है। आई बिलीव फेट। मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आया व्हाट आफ्टर मी। मेरे को सब लोग बोलते हैं व्हाट आफ्टर मी, मतलब जब मैं गई तो मुझे क्या You are पता, already prepared. और मैं गई तो मुझे क्या पता Yeah. व्हाट आफ्टर। आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, Yeah. आई हैवंट प्रिपेयर्ड।
I really haven't. And in that moment, आप उसके बारे में सोचने के कारण you forget and you What is the don't live present? what's the present. I You haven't. just don't live the present. मैं Yes. मुझे नहीं पता मैं सुबह उठ रही हूँ कि नहीं उठ रही हूँ, क्या मैं इतनी क्या चिंता करूँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं I'm जो living जैसा the हाँ moment. हाँ करके ट्रस्ट बना लो, ट्रस्ट में कोई धोखाधड़ी कर देगा तो क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे, आप तो भरोसे पे ही जा रहे हो। मैंने बोला वो 12 बार घूमा था तो क्या किया मैंने, गायत्री मंत्र पढ़ने के अलावा मैंने क्या किया, कुछ नहीं। और मेरे को ये मालूम था कि जो देता है ना वो देखेगा। My God, but putting that faith and keeping that faith Keeping also. that क्योंकि सी 12 टाइम्स जो भी देखो भांडुप से मुलुन गया वो चल के, उसको एक खरोंच नहीं, वो आता था मैं पूरा बॉडी स्कैन करती थी कि लगा होगा पैर में लगा। सी देयर इज समवन हु इज लुकिंग एट हिम, जो देगा वो देखेगा। आई बिलीव इन दैट। ऐसे कर तो शायद वो भी थिंकिंग की ठीक है हो जाएगा ऐसे कर। But God also helps those who help themselves. And those who So trust. your conviction and your faith in God has made them what they are today. Coming over to you, ma'am. So, being a developmental pediatrician, what all are the recommendations that you give parents, children, when they come? You do the diagnosis. How does the process go? So once we have a diagnosis on hand, so once we've clinically identified and then through a battery of tests, nowadays we do have a battery of tests and then we come up with the term. Otherwise, we do not use the terminology per se. Once we found out that the child is on spectrum, then we identify what are the strengths of this kid. What are the strengths of this kid? Of course, along with that is what are the deficits of the kid. किन चीज़ों पे हमको काम करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों में बच्चा अच्छा है, the strengths, उनको यूज़ में लाके बॉडी में थोड़ा सा डोपामीन या वो रिवॉर्ड हार्मोन जनरेट करके हम वो करवाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेल मी कि वाओ डॉक्टर आस्था यू डिड रियली वेल, व्हाट दिस डज टू मी इज दैट कि माई डोपामीन गेट्स, इट बूस्ट्स माई डोपामीन. That's how I explain therapy also to parents, that if you go right now and you tell me ki no Dr. Astha did really well, I would be really happy because that is my dopamine. My patient is happy with me, I am satisfied, and this is exactly how I'm going to behave with my next patient also. So because these kids or the patients are wired for a little bit of a repetitive thing, we use that कि चलो बार बार करवाते हैं क्योंकि रिपीटिशन पे ये अच्छा परफॉर्म करते हैं. Not all of them, but on a lot of them. So identifying strengths, weaknesses, and using the strengths to work on the weaknesses. This is how we identify. Then of course behavioral therapy हो गया या occupational therapy, speech therapy, जो बच्चे को जरूरत है. And now there is no one size fits all. ऐसा नहीं है कि वो सब पे if you've seen one, yeah, तो आपके दोनों बेटे ही कितने different होंगे आपको. So if you've seen an autistic individual, you've only met one person with autism. That is what they say, right? So for every child or every individual, we have a separate plan. And that plan keeps changing weekly. जब भी पेरेंट को जरूरत है हम पेरेंट से पूछते हैं, आर यू सीइंग एनी इंप्रूवमेंट, रिग्रेशन हुआ है? अ लॉट ऑफ द टाइम द चाइल्ड मे बी डूइंग समथिंग एंड दे रिग्रेस ऑल्सो. वॉट एवर दे वर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग दैट ऑल्सो ड्यूरिंग थेरेपी. दैट ऑल्सो हैपेंस. प्रोग्रेस कर रहा है क्या, वहीं पे है क्या, इज इट स्टैटिक, इज द चाइल्ड बिकमिंग बेटर, एंड देन अकॉर्डिंगली द therapies change. And of course, one good thing that ma'am picked up, and I wasn't planning on talking about this, but now that she said it, please give your child the medication if they need it. Do not make them suffer just because you think that the medication is going to harm them. We've studied and there has been immense research, and only then that medicine is in the market. And then we've studied years and years, and I know what dose to prescribe. I am going to sit down with you and titrate the dose of the medicine. If I feel, and I do not medicate, or my colleagues, we doctors generally do not medicate if it is not required. But if they're doing it, then there may be a reason behind it. And do not just go back and मैं तो नहीं दूंगी दवाई. Don't go back onto it because there's a reason why they're doing it. आप lifestyle improve करो ना. इंडिया में पेरेंट्स या फिर इन जनरल हम लोगों का ये परसेप्शन है कि ठीक है ना, काम चल रहा है ना, नहीं भी सोएगा तो क्या है, नींद इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. तो if you have to medicate at a certain dose and if your doctor's prescribed it, please go for it, is what I want to say. Yeah. Thank you for that. Ma'am did talk about finding their skill sets. I do know that you taught your children swimming. I want to know how.
स्विमिंग का ऐसा था कि ADHD है तो कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो आई थॉट कि स्विमिंग वुड बी बेस्ट। मतलब आई न्यू कि दे लाइक वाटर एंड ऑल, तो हमारी सोसाइटी में स्विमिंग का नहीं था, तो एक आगे कोई सोसाइटी थी, वहाँ पे स्विमिंग का एक समर कैंप होने वाला था, जो कोचेस वहाँ पे आने वाले थे। तो आई वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, तो वहाँ पे मैं वो कोच के पास गई। आई पेड हिम डबल द अमाउंट फॉर बोथ द किड्स। आई सेड वी आर नॉट हियर टू लर्न स्विमिंग, उनको सिर्फ पानी में खेलने दो। और शिवम को तो आप ट्राई कर लेना थोड़ा, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको खेलने दो, वो खुद थोड़ा बहुत करेगा। वो नहीं भी सीखेगा तो मैं आपके पास आके कंप्लेन नहीं करूँगी। और वो स्विमिंग पूल के ऐसे आजू बाजू में बैठने की जगह थी। पेरेंट्स वर सिटिंग, फर्स्ट डे वी केम, तो अंदर गए तो आपको शुरू में इनिशियली पता होगा ऐसे पकड़ के पैर को फ्लैप करते हैं, फर्स्ट Yeah, स्टेज। फर्स्ट या तो उसने शिवम को भी बोला, शिवम करने लगा वैसे करके। सत्यम अपना पानी में चप चप कर रहा है, इवन ही इग्नोर्ड। फिर थोड़ा 15-20 मिनट आया, स्लो इवेंट। मैंने सत्यम, शिवम देखा, शिवम को ना वैसे करने का, वहाँ पे जाऊँ वो पकड़ो से। आई वेंट ऐसे स्लोली। तो वो मैंने जो कहा, तो वो 15 मिनट में वो हो गया ना उसका, वो पानी का खेल वेल के, तो वो थोड़ा सा करने लगा। अब ये कोच को लगा मैं भी कर सकता हूँ, तो ही उसने सब कुछ छोड़ के उसके पास गया। मैंने नहीं, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। नहीं मैं देखूंगा। ही ट्राई टू बी, आई सेड कि मेरे को लगा शायद ही इज कंसिडरेट, तो वो उसके पीछे ही पड़ गया, ऐसा करो वैसा करो वैसा, और फट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज लाइक अपना चप पानी उड़ा रहा है, ये कर रहा है वो। सडनली ही गॉट एजिटेटेड, और उसने उसको ऐसे पानी में खड़ा किया, एक थप्पड़ लगा दिया। और मैं सलवार कमीज में स्विमिंग पूल में उतर गई। मैंने आपको डबल पैसे इसके लिए नहीं दिए। थप्पड़ तो मैं दिन में 10 बार मार लेती, तो उसके लिए आपको पैसे दिए नहीं है मैंने। और मैंने आपको बोला था स्विमिंग भी नहीं सिखाना है आपने। तो उसने शिवम का भी हाथ पकड़ा और ऐसे खींच के बाहर निकाल के ऐसे लिटरली ही थ्रू, इसको भी ले जाओ, जिंदगी में नहीं सीख सकते आपके बच्चे स्विमिंग। मैं इसी पूल में सिखाऊंगी, देखना तुम। बोल के तो बड़े अक्कड़ से आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कैसे, वो तो मेरे बाप की स्विमिंग पूल है, कैसे सिखाऊंगी मैं वहाँ पे। तो देन आई टोल्ड माय फादर इन लॉ, आप पहचानते हो किसी को वहाँ पे वो सोसाइटी में? तो बोला हाँ, वो चेयरमैन को मैं पहचानता हूँ, ऐसे जस्ट उनसे बात करा दो। तो मैंने बात करा, मैंने बोला मेरे को ना यहाँ पे स्विमिंग सिखानी है। तो बोलता वो है ना समर कैंप चालू। मैंने बोला नहीं, मेरे बच्चे में इसका प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे करके। तो बोला पर वो तो ना 11:30 बजे खत्म होता है, तो आपको धूप में 12 बजे सिखाना पड़ेगा। मैंने चलेगा ऐसे करके। तो ही गेव मी परमिशन। तो उसकी क्लास खत्म होती थी और मैं मेरे बच्चों को लेके, उसकी 15 दिन की क्लास थी, मैंने सेकेंड डे नहीं चालू किया। 6 दिन में मेरे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे विदाउट फ्लोट। 7वें दिन मैं बैठी थी ऐसे, 6 दिन तो मैं पानी में थी उनके साथ, और 7वें दिन मैं ऐसे बैठी थी। और ये कपड़े वपड़े चेंज करके आया, ही इज लुकिंग, और धीरे से आके मेरे पास खड़े होके बोला ऐसे बच्चे भी सीख सकते हैं। बड़ी सरकास्टिकली आई लुक्ड एट हिम, सर्कस देखा आपने? तो बोला आप मेरे को जोकर बोल रहे हैं। मैंने बोला नहीं, सर्कस देखा है आपने? तो बोला कुत्ते को बताओ ना लाल रुमाल लेके आओ, तो कुत्ता लाल रुमाल लेके आता है। आपको सिखाना नहीं आता, सीख तो कोई भी सकता है। सो ही वॉज वेरी एजिटेटेड बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ पे तो हो गया 15 दिन का उनका हो गया, हमारा भी 1 महीने का पैसा। अब भी हमको प्रैक्टिस करनी है, तो कहाँ जाएंगे? तो हमारे एरिया में म्यूनसिपल का है, वहाँ पे हम गए एडमिशन। एंड फॉर आवर बैड फॉर्च्यून ही वॉज द मेन कोच। Oh God. That's like a movie. Sounds like a movie. And for our bad fortune, he is the main coach there. So मैं वहाँ फॉर्म भर रही हूँ वहाँ पे वो मैनेजर के सामने, एंड ही केम, ही सेड समथिंग टू हिम। और फिर दूसरे दिन हम जब गए तो उसने हमको पैसे वापस दे दिए, मैनेजर ने। नहीं वो मैं आप पैसे ले लो, वहाँ पे हो नहीं पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं यहाँ पे वो बच्चे में आपके प्रॉब्लम है ना, आपने बताया नहीं। मैंने आपको बताया तो था ना, वो बात नहीं करता है ये। नहीं आपका बच्चा बहुत बदमाश है, वो सब यहाँ वहाँ भागेगा, ये वो करेगा, फिर इसको कुछ पानी में हो जाएगा। तो मैंने बोला आपको कौन अथॉरिटी दे रहा है उसको डिनाई करने का? ये म्यूनसिपल का है, तो आप मेरे को लिख के दे सकते हो क्या? तो बोलता है नहीं मैम, लिख के तो नहीं दे सकते, पर अभी आप सोचो ना प्रैक्टिकली, कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, और हमारा हेड कोच ही बोल रहा है वो नहीं सिखाएगा। तो मैंने बोला मैं सिखाऊंगी।
आप सिखाओगे? मैंने बोला हाँ मैं सिखाऊंगी, और वो आता है उनको स्विमिंग। तो बोलता है टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने किसका, उनका कि मेरा? नहीं, आपको टेस्ट देना। वहाँ पे ना म्यूनसिपल में दो पूल होते हैं, एक छोटा पूल होता है, एक 16 फीट पूल। तो बोला, मेरे को बोला आपको 16 फीट पानी में टेस्ट देना पड़ेगा। आई सेड अग्री। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। अभी उसके पास और कोई तरीका नहीं है, अभी टेस्ट भी ले लिया। तो बोला कि पर फिर भी मैम इसको कुछ पानी में हो जाएगा, थोड़ा आप सोचो ना हमारा क्या होगा। तो मैंने बोला चलो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मुलुंड कोर्ट गई, एक पेपर बनाया, एनओसी, इफ समथिंग हैपेंस टू माय चाइल्ड आई एम द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड। मैंने अब आप एडमिशन दोगे? दिए। The way she finds a way. मैंने कहा, अभी इससे देखो ये जरूरत भी नहीं थी। मैंने सिर्फ वो आदमी का वो जो हेल्पलेसनेस दिखा रहा था कि कल को बच्चे को कुछ होगा तो हमारे पे इल्जाम आएगा कि आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, आपने कैसे लिया, विच वॉज प्रैक्टिकल। Yeah. सो आई फाउंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। Today, hearing all of this, we are looking at it like an incident, but imagine what a mother must have Imagine. gone through. आप सोचो हमारे बच्चे को कोई इतना सा कुछ बोल देता है, एकदम ऐसे जान पे आ जाती है कि कैसे बोल दिया, एंड शी इज गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस. तो मेरे फादर ने बोले तू कोर्ट गई? बोला हाँ, मुल्क को नजदीक था, साइन करके ले आया हमने। तुमको क्या चाहिए कि कल को तुम पे कुछ ना आए, है ना? तो हम तो लिख के दे रहे कुछ नहीं आएगा तुम पे। तो हेड कोच को, वहां पे कोच को कुछ चला ही नहीं वहां पर, बिकॉज वहां पे दैट वाज द फर्स्ट केस जहाँ पे माँ खुद आ रही थी बच्चों के साथ। एंड ही स्टिल मेड आवर लाइफ वर्स, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि आप लेडीज से आओ, एंट्री करो, वो जेंट्स से आएगा, बॉयज से एरिया से। अब वो तो शोर में खेल रहा है, मेरे पास वे नहीं है हाँ, कि वो बाहर निकले। तो मैं शिवम को भेज रही हूँ, मम्मी वो सुन नहीं रहे, बाहर नहीं आ रहा वो। He's not allowing us to go there. He's making our life more कि मतलब He तुम is आ just गए ना like- अंदर, अब देख लो। बिकॉज वो ईगो कहाँ जाएगा? या और एक औरत ने तुम्हें उसी पूल में बोला, मैंने, और मैं बोल के निकली, बोली कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने कैसे कर लूंगी मैं? क्या बोल के निकली मैं? व्हाट रबिश आई वाज टॉकिंग, बट स्टिल आई फाउंड माय वे आउट की ऐसे करके। And all mothers can't fight it. नो, मोस्ट ऑफ देम काम कितने तो बैठ जाएंगे, छोड़ो, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, नहीं, और बहुत लोग awkward, embarrassed, हो जाता है. यू नो मेरे पास, मैंने देखा कि सत्य में से ना अपनी बात मनवाने के लिए इसको लाई डाउन, नहीं तो ना ऐसे करेगा कि मैं ऐसा, हम लोग रोड क्रॉस कर, सडनली ही स्टैंड, मतलब भाई रट्टक, और मैं जाके खड़ी हूँ, मेरे को कोई फिक्र नहीं है, वो गाड़ी वाला फिक्र करे ना, उड़ाएगा, जो करेगा करेगा, और मेरे को मालूम है कुछ नहीं होने वाला है। जैसे गाड़ी में ये भाग के आएगा, ये मेरे को डरा रहा है, मैं डर नहीं रही हूँ। प्रॉब्लम ये है, वो अपना काम सही कर रहा है पर उसने गलत माँ चुन ली है, तो प्रॉब्लम वहां पर हो गई है कि वो डरने वाली माँ ही नहीं चुनी उसने, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि गाड़ी इस लेवल पे आएगी ना, ये भागेगा, उसको भी डर तो है अपनी लाइफ की। तो एक बार वो रोड पे ऐसे लेट गया, तो वो मराठी लेडीज थी, तो बोल कशी आई है ऐसे, मतलब बच्चा कुछ मांग रहा है तो ऐसे करके, तो मैंने बोला अपने घर ले जाओ, ले जाओ अपने घर, पता चले। ले जाओ, पाल लो उसको, ऐसे करके। तो आज मैं बहुत खड़े रहती थी शांति से, फिर ये थोड़ी देर खुद ही अपने कपड़े झाड़ता, खुद ही अपने चल देता। दूसरे पेरेंट्स क्या करते, दे आर एम्बैरेस्ड, दे आर ऑकवर्ड, और बच्चा सेंस करता है, और करता है फिर वो. बच्चा सेंस करता है, बच्चा सेंस करता है। Actually Deal with it. found Yeah. the correct- And now their biggest problem is parents are like, मैम मॉल में embarrass कर दिया, एकदम लेट हाँ. गई थी, अरे सबके बच्चे एम्बैरेस कर करते नहीं हैं. दिया, तुम हो गए, एम्बैरेस Wow. कर नहीं दिया, तुम हो गए, हाँ. तुम हो गए। मैं तो कभी एम्बैरेस नहीं हुई, कभी ऑकवर्ड नहीं हुई, कभी ऑकवर्ड नहीं हुई मैं। If the parent is not, then you are teaching the society also. नहीं, आई ऑलवेज हैड दैट वॉल, Hmm. बको बोल लो, कोई फर्क But नहीं I am पड़ता। so sure this must have not been easy. नो ऑफ कोर्स दैट हैज, वो उसका एक अलग था, वो इट बिल्ड्स अप, इट बिल्ड्स अप, तो वो धीरे धीरे वो फिर एक सर्टन वो आता है, फिर वो देन आई एम आउट फॉर 2 months, आई एम नोवेयर टू बी सीन, और माय मोबाइल्स आर क्लोज, एवरीथिंग, देन आई एम रीसेट, देन आई एम कम बैक, Okay. ऐसे करके। मैं 2 महीने घर पे ही नहीं हूँ, मैं अपने फादर के साथ चली गई हूँ कहीं पर, नो वन नोज वेयर एम आई, नो वन कैन ट्रेस मी, देयर इज नथिंग, देन आई कम बैक, चलो नाउ बैक टू ड्रिल, Yeah. vacation time is over, Yeah. and medication is there,
ऑफ कोर्स मेडिकेशन इज देयर. बीच में भी मैंने मतलब मेरे को 3 bouts ऑफ डिप्रेशन है, वेरी वेरी सीरियस, वेरी सीरियस. वंस आई ब्लैंक्ड आउट, आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड. आफ्टर 3 days आई गॉट, मतलब मैं 3 दिन के बाद मुझे सडन ओह शिट, मैं तो हॉस्पिटल में That's हूँ. what I said. ये हंसी है, but इस तो- हंसी के पीछे बहुत Yeah, कुछ है. yeah, तो yeah. 3 दिन बाद, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, पर फर्क तो पड़ रहा है. हाँ, Of course पढ़ रहा है. वो जमा हो रहा है. Of course पढ़ रहा है. I told you, I can totally relate. I can totally understand. आप But- शेरनी हो. But please, आप हमारे सामने आपकी एक छवि है. I better maintain that. No. This is also important. Letting that out is also very important. It's not easy, and the way you have fought is also not easy. But look at your children now. Look at your children. That shows you're a winner. हाँ, मैं वही बोलती हूँ. मैं बिल्कुल फोन, मतलब मेरे को कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने सत्यम को कितने दिन से देखा भी नहीं है. होता है, मैं मेरी सिस्टर के यहाँ जाती हूँ, मैं सिस्टर स्टेज अलोन, मैं उसके साथ जाके रहती हूँ. आई नेवर, मैं उसको कॉल, मतलब बात तो वो क्या ही करेगा, पर वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं ना. मैं नहीं देख, मैं शिवम को भी फोन नहीं करती हूँ. वो जब तक सामने से नहीं करेगा फोन, मैं नहीं करती हूँ फोन. और वो फोन कब करता है? अपने मतलब के लिए. ऑफ कोर्स कुछ काम है तो भी. वो तो सब बच्चे यही करते हैं. उसमें कोई फर्क नहीं है. जैसे ही पढ़ा, मम्मा क्या चाहिए, वो तो सब जगह आज वही इसने मेरे को फोन करके बोलता है, मॉम कैन यू रिचार्ज? आई सेड नो. व्हाट? आई सेड नो. व्हाई? आई सेड यू सेड कैन यू रिचार्ज, तो दैट वाज अ क्वेश्चन. आई कैन आंसर, आई एम फ्री टू आंसर. यू डिडंट से कि प्लीज मम्मी कर दो. यू आस्क्ड मी क्वेश्चन, यू गेव मी ऑप्शन, सो आई एम नॉट रिचार्जिंग इट. क्या मम्मी, आप प्यार से भी बोल सकते थे. दल्ला प्यार से ही बोला था बेटा, प्यार से ही बोला था. तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे करके. But In India, do we have support for people who are actually taking care of autism? Because as far as I know, in a lot of Western countries now, we There have some is- mental health counseling for There we go. caregivers, especially the mother, because the mother is the first one to be blamed by the family, by the By the society, society. and the mother herself takes the blame onto her. कि Yeah. क्या हुआ था? My parenting forget has blame. All the responsibilities comes also. on to her. Yeah. I completely agree. So in a lot of Western countries now, they've started giving them mental health counseling for the therapists, for even like professionals like me who are dealing with children who have neurodevelopmental It is disorders. started here because we have taken so many interviews and podcasts. So it Okay. is started. Okay. कुछ जगहों पे है. होने लगा है. हाँ, even for the therapist, हाँ. for the parents. For the yes, parents. है. आपको But पता है, there is- मेरे को एक बार जो उन्होंने बताया ना, शिवम की जो स्पेशल एजुकेटर थी, तो एक बार उन्होंने मेरे को बोला था, वो एक बार लेट आई, तो मैंने बोला आपको लेट हो, मैं काउंसलिंग, मतलब आप काउंसलिंग को जा, काउंसलर को काउंसलिंग क्यों लग रही है? बोले ये डे आउट, यू नो वी आर Yeah. लिसनिंग टू दिस, Yeah, इट इज yeah. अफेक्टिंग Affect- अस. yeah, Yes. it does. आई नेवर न्यू कि ये देखो, डू यू नो, उनको जरूरत है इस बात की, लाइक यू नो. No, every story like this hits so hard. Hard. Because I go back into the time when go she's deep saying in, ना, yeah. and I imagine कि इनको क्या लगा होगा कि वो कोच ने बोला होगा कि पूल में नहीं आएगा I आपका बच्चा. swear. मतलब कैसा लगेगा आपको एज अ मदर? अब क्या? Horrid. नहीं, कोई दूसरी मदर तो शायद वो अपने आप पे मेरे बच्चा ऐसा वो इसलिए. वही I was like, रोके. No, How good you dare gave it you back. say that? Yes. देख, तुम क्या ही बोल लोगे जब मैं इतने बड़े डॉक्टर को सुना के आ सकती, तो तेरी औकात क्या है? क्या ही बोल लेगा तू Please ऐसे start करके? coaching young I mothers. swear. They need it. ये दमदारी वाला जो आपका स्टाइल है ना, can lighten so many moments. जो शिवम की स्पेशल एजुकेटर है ना, शी सेड कि यू नो व्हाई योर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल. दैट टाइम आई सेड यू आर वेरी स्टबन, एंड इन योर केस दैट स्टबननेस हेल्प. Yeah. क्योंकि it's a सत्यम इज वेरी positive- स्टबन, पर आपने उसकी जिद के आगे हार नहीं मानी है. क्योंकि मैंने ना सत्यम के लिए स्लोगन रखा था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. क्योंकि मैं डे 1 पे मेरे को ऐसा लगता था इसने ये किया ना, चलो अब इसका जुगाड़ लगा दे. मैंने जैसे ही वो जुगाड़ कुछ लगाया तो ही प्रूफ की उससे एक स्टेप आगे जाएगा. अब तुम सोचो, अब इसका इलाज नहीं. वो भी आपका ही बेटा है ना? हाँ, तो मैं हमेशा गॉड लाइक, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब मैं कुछ भी उम्मीद करूँ ना, ये मेरी उम्मीद के बाहर ही जाएगा. ये You have a new set of challenges. हमारे already घर ready. में ना ये नंबर वाले, जैसे ब्रीफ केस में नंबर वाले लॉक रहते, हमने घर पे लॉक लगाए थे. He could manage to open that and run away. That Yeah. कॉम्बिनेशन हमने हार्ड सोच के रखे. हमें लगा
हम तो आईटी वाले हो गए उनको तो कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें नहीं पता था कि यहाँ आईटी पे का यहाँ बाप पे बेटा के हाँ यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। सो मैंने उसके लिए वो पूरा रखा था, मतलब एक्सपेक्ट हमने जो सोचा होगा ये एग्जैक्टली उल्टा करेगा। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वो सत्यम के लिए कोट रखा है मैंने। एक्सपेक्ट, हमें कुछ नहीं पता है, हम भले 28 साल से इसके साथ रह रहे हैं पर हमें कुछ नहीं पता। हमें रोज कुछ नया पता चलेगा, रोज कुछ नया पता चलेगा ऐसे करके। So currently there is lot of awareness. Social media has so many these are the red flags, this is what you should be looking at, which is in a way good, but as we all know there is a flip side to it as well. So there is also a lot of misdiagnosis, or you can say extra vigilance that is happening. That parents, even seeing a few traits, they're like, oh my god, I think my child has this. So what is your take on this? Yeah. And this is a really good question, because so many parents walk into the clinic thinking that their child is delayed. Again, social media has become like a double-edged sword, wherein you have knowledge, but you have extra knowledge about things. Of late, I've been having so many kids who've been referred from schools, because teachers are also calling parents repeatedly. आइए, आपका बच्चा भाग रहा है क्लास में, आपका बच्चा भाग रहा है. A 4-year-old or a 3.5-year-old is expected to run in the class. You think that child is going to sit for 1.5 hours and listen to what y'all are talking? No. Are you going to sit? I also don't sit for 1.5 hours and somebody teaches me something. True. So are you expecting your child to really sit there for 1.5 hours and sit quietly? And another thing that has been happening is, a lot of parents, end up feeding their kids with their own hands. And when they go to the school, अभी तक तो आपने खाना खिलाया, अब वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो गीली सब्जी को हाथ नहीं लगा रहा है. So many moms have come to me, ma'am, my child has sensory issues. I'm like, why? Because वो गीली सब्जी को हाथ नहीं. I'm like, आपने अभी तक लगवाया है उसको हाथ? नहीं, अभी तक तो मैं ही खिलाती थी. तो naturally ना, this is not something to be worried about. It's not that your child has sensory issues or your child is on the spectrum. We have so much knowledge that now it has come to kill us. It has started to bite us. So, see, there are times when you have to visit the pediatrician, when you feel that your red flag signs have persisted for really long, or your child isn't developing like how the other children are. But just because your toddler or your 3-year-old is running around the class and your teachers have complained twice, teachers are going to complain. See, they have 30-35 students. So the moment they see something, arey chalo fatafat ek note dal ke. And I have immense respect for teachers. I'm not saying that, but I think we create a lot of parental anxiety. And mothers become so anxious and they come into us. And most of the times the kid is absolutely okay. Yeah. जैसे वो जोक होता है ना कि you should respect our generation, we passed without Google. So I feel, I'm blessed कि वो टाइम Google नहीं था. So, इतना ज़्यादा clash of knowledge नहीं था. Also, ma'am, you were talking about empathy. How important is that? Extremely, extremely important. Empathy has to be taught, especially for children who are studying with children who are neurodiverse. I feel like when there are neurotypical kids, more often than not, the parents are actually trying to protect their child. हाँ, उससे दूर रहना, वो बच्चा बहुत भागा दौड़ी करता है. अरे तू उसके मैम इसको उसी के साथ बिठाओगे क्या? Why is my child sitting with this particular kid? Instead of that, once your child has decent understanding, and every child has decent understanding after 3 or 4 years of age, tell them that this kid, he might understand slightly slowly. You really want to help him out. Do you want to become friends with that person? And kids are like slates. They are like empty slates. You can fill in what you want. They are not going to develop. They are going to develop what you teach them. So inclusion in terms should also be making your kids understand that, there is this particular individual who needs to be cared for and pampered. And as I've said, autistic individuals, they thrive under beautiful relationships. Once they have a friend, don't we all? Yeah. So once they have a good friend, they see a good friend in somebody, I think they do really well. Even the therapy goes really well when they have good relationships around them.
एंड टू एड ऑन दिस द पेरेंट्स आर सपोज टू टीच. मुझे ऐसे लगता है, अभी मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी. मेरी एक फ्रेंड है, शी टोल्ड मी दिस, शी टोल्ड मी आई वाज सो, मतलब शी टोल्ड मी कि मैं इतनी खुश हो गई. तो शी टोल्ड कि हमको ना बस में ट्रैकिंग का सिस्टम होता है. तो शी वाज ट्रैकिंग हर सन. तो बोलती रोज ना एक पर्टिकुलर स्टॉप पे आके वो बस काफी देर खड़ी रहती थी और रोज डिले हो जाता था हमारे घर के एक स्टॉप पहले. तो बोलती मैंने एक दिन पूछा मेरे बेटे को कि क्या रोज वहां पे क्यों इतने देर बस खड़ी रहती है, कोई आता नहीं क्या उसका पेरेंट. तो बोले नहीं मम, वो ना हमारे क्लास में एक लड़की है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेचारी को, तो वो ना उसको उस स्टॉप पे, उसका स्टॉप नहीं पर उसको उतर के वहां से फूल लेने होते हैं. तो उसको फूल लेने होते हैं तो हम अलाउ करते हैं कि ले आओ. फिर वो बहुत परेशान होती है, फिर रोती है वो. तो फिर वो नीचे उतरती है, फिर वो जाती है वहां से, वो फूल लेके आती है. तो कोई बात नहीं ना मम्मी, थोड़ा लेट हो जाता है तो क्या है. So this is so nice. This is what I'm talking about. तो मुझे आई वाज सो इम्प्रेस्ड, यू नो. तो आई सेड सनी यू शुड. तो फिर ये दैट इज योर थिंकिंग बिकॉज यू नो अबाउट मी, यू नो अबाउट माई किड्स. सो तूने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बताया होगा कि इनके बच्चों में प्रॉब्लम है, ये है वेरी एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक. तो वो बच्चे में भी आया. नहीं तो दूसरे बच्चे इसकी वजह से लेट हो गया मम्मी, दैट वाज नॉट द रिएक्शन. Yeah. क्या मम्मी लेट हुआ तो कोई बात नहीं ना. फिर वो बेचारी पूरे बस में रोती है. So educating, I mean, giving them the clear picture. Yeah. What is it? How is it? Yeah. और एक और चीज है जो आपको रिकॉर्ड पे जानी चाहिए कि मेरे हिसाब से, मेरे को कोई भी पूछता ना ICSE बोर्ड, आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर स्टेट बोर्ड. इजी, सेफेस्ट. मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, I agree. मैं सबको बोलती हूँ इजी, सेफेस्ट. और कोई फर्क नहीं पड़ता 10वीं के बाद आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, ICSE बोर्ड से पढ़े हो. मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आई हूँ. और देखो, हिंदी मीडियम से, Winning at life. हिंदी मीडियम से पढ़ के आई हूँ. 5वीं में ABCD सीखी थी मैंने. तो मेरे को पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बच्चा स्टेट से बड़ा है. Until unless हाँ you have that goal of achieving engineering, having competitive exam, which obviously we don't think कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं. पर हमारे बच्चे अभी एग्जाम्पल है जो IIM में गए हैं. या एग्जैक्ट. पर बहुत लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते. तो इतना ज्यादा स्ट्रेस ना बच्चों को देना चाहिए ना खुद लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. इसलिए मैं कोई बोलता ना ये बोर्ड खत्म करो, बहुत सारे कंसेशन मिलेंगे तुम्हारे बच्चों को, लाइफ इजी करो, बच्चे की खुद की सब इजी करो लाइफ. क्योंकि बाकी स्टेट बोर्ड CBSE में भी है कुछ, NIOS में भी है कुछ, बट द मोस्ट या बिकॉज हम विनोद तावड़े के साथ बैठे थे ये पूरा फिगर आउट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के साथ कि हमको ये चाहिए. मुझे एक पेरेंट से बताया कि जो 9th में स्टेट बोर्ड का बच्चा पढ़ेगा ना वो 5th 6th में ही वो पढ़ लेगा. पर क्या करना है? तो मैंने बोला फिर क्या होगा, राहुल बनेगा strong. 11वीं में तो वापस वही पढ़ेगा है ना. 11वीं में तो फिर वही Exactly. पढ़ेगा. तो क्या कर ले. ये स्पीडन अप करके करना क्या? Yes. या जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो कोई भी बोर्ड गवर्नमेंट में स्कूल try से भी करे. आ Yes. गए हैं ना लोग, Exactly. गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के आ जाते हैं ना. Who क्या have that knack will obviously. अभी हम लोग तो उस टाइम पे CBSE से पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ ट्यूशन नहीं. नहीं, कोई फलाना एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई. आई डिडंट गो टू वन सिंगल कोचिंग, जस्ट एट होम. मैं तो बहुत प्राउडली बोलती हूँ. सब लोग बोलते हैं यूपी में पढ़ाई नहीं. IAS सबसे ज्यादा यूपी Yes. के है, IPS सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा. यूपी के है. और वो कैसे गांव कंडीशन से से पढ़ गांव के सब कहाँ कुछ कहाँ किया से है. आए. तो इट डजंट मैटर, कुछ नहीं मैटर करता ये है. सब रेस है. हाँ और एक नहीं, कमाने का एक भाई जरिया बोल है. रही हूँ अभी तो हर चीज का. पहले तो इंजीनियरिंग का, मेरा भाई तो इंजीनियर है, उससे तो ये कोई नीट क्या कौन से एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग, नीट, जेईई. जेई, ये नहीं कुछ नहीं था. तो? 12वीं के बाद सीधे इंजीनियरिंग में गया था वो तो. जबकि अरे जमाने की बाबा बात भी हो रही थी. आबादी देखी है आपने. हाँ, आबादी सबको में- जाने देंगे. हाँ, नहीं मैं जब की बात कर रही हूँ. तो मतलब इट वाज नॉट नीडेड ना. आज भी रिक्वायरमेंट नहीं है. वो तो कितने पैसे कमा ले रहे हैं पता है कमा उन्होंने ले रहे हैं ना फॉर्म that's के what. नाम पे. आधे बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं ना वो एग्जाम भी नहीं जा रहे. भर लिया उन्होंने क्योंकि माँ बाप ने बोला. True. मेरे घर में ही है, भर लिया था फॉर्म, पैसे भी भर लिए हैं. फिर बाद में डिसाइड किया नहीं लॉ पढ़ लेंगे हम. फॉर्म के पैसे तो गए, क्लासेस में पैसे गए, वो भी गए. और उनकी जेबें भरी. मैंने बोला अभी केस करके सब पैसे वसूल कर लेना. अभी क्या करेगी. शी नोस हर वे अराउंड लॉ. केस हाँ. करके पेपर निकाल लिया ये. I think that credit goes to my father. My father was You are so well aware on laws.
नहीं, मेरे को लॉ का ये पता था कि आप पहुंच सकते हो जहां आपको पहुंचना है। आधे लोग वहीं नहीं पहुंच पाते हैं जहां नहीं, पहुंचना होता देखो है। बहुत बेसिक है कि जब तक मैंने ऐसा कुछ क्राइम नहीं किया कि मुझे पुलिस बिहाइंड द बार्स नहीं कर, दैट कॉमन सेंस इज कि टिकट मैंने नहीं लिया है तो क्या करोगे, फाइन दोगे, फाइन नहीं दोगे तो क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे आज भी नहीं पता कि अगर फाइन नहीं दे सके तो उनके पास क्या लास्ट अथॉरिटी क्या है, मुझे आज भी नहीं पता है हम्म कि क्या अथॉरिटी है उनके पास। वो रख सकते हैं क्या, वो रख सकते हैं 24 घंटे? आई डोंट थिंक सो, नो आई डोंट थिंक सो। रखते हैं। फॉर नॉट पेइंग अ ट्रेन फाइन, Yeah. फॉर नॉट आई दे हैव दैट अथॉरिटी। They have. अच्छा, मेरे को नहीं पता था, मेरे को पर तो मैं ऐसा सोचती हूँ एडम बस क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। अभी गरीबों को क्या, उसका क्या किया शिव, उनका 60 रुपए देके चला गया, वो रख लिया उसने अपने जेब में। आपको लगता है वो फाइन का कुछ बिल मिला उसको? So I do know this is a beautiful conversation that is going on, but we have our time constraints. So that one message that you would like to give to our audience, and ma'am, one message I would love to know from you. So yeah. one message that I would like to give to the audience is smile more for the parents. By looking at ma'am today, I just want to say that smile more. This is now that the kid is diagnosed, ऐसा नहीं है, this is not some fever कि आपने गोली दे दी और कल ठीक हो जाएगा। आपको पता है that this will take a long part of your life, a large part of your journey. Smile more, live more. Let your kid live. Your kid is still exactly just the same. Just because वो autism में कुछ word आ गया, आपका बच्चा आज भी वही है जो कल था diagnosis के पहले। तो प्लीज उसको कुछ अलग नजरिए से मत देखिए आप। That is what I want to tell my parents. Yes, ma'am. Over to you. होप फॉर द बेस्ट, एक्सपेक्ट द वर्स्ट। Whoa, powerful. क्योंकि मैंने बोला एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्ट, हमें नहीं पता, हम होप पे चलेंगे, हम अपना काम करेंगे, बट मैंने सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, सो एक्सपेक्ट द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। Wonderful. Wow. Well said. Beautiful. Thank you so much. And thank you for being my instant therapist today.